we need to practice, need to learn, to discuss properly, comprehensively. We have done. We have discussed all of them, and in my opinion, from my point of view, there's no any error or any problem in the structures as far as the verbs or the uses or the structures or the I mean correct or incorrect structures are concerned. We have practiced them very thoroughly, and there's no any gap or space left to be worried about the sentences. Okay, and we have a pretty comprehensive practice of all these sentences regarding the present tenses and past tenses is concerned here. So see, all of the things can be, as I mostly quote and insist in my classes, can be overcome, can be made a better or perfect one when we have a frequent practice of the sentences. And if we late practice, if we just rely on the theory, on the lectures, okay, or on the uses of the things that how to use and what to do, of course we complain and cry that now we are uneasy and can't be able to learn to make the things accurate and better on the end. So dear students, you need to have the practice in order to be familiar, okay, with the structures, with the tenses, okay. And if you just think that we have to appear okay in the test and now just superficially we have to learn them, they can't be controlled, okay, they can't be picked up, gripped. So we should try to focus and practice more and more, practice more and more such sentences. That is why I have been the part of the practice of your section, because I realized that if practice is not made, we can't be able to reach the perfection or the correction level of the tenses. That's why regularly I have decided to include this item of practice as well, in order to enhance and to make my students quite accurate or quite confident that this is what the way to understand or to learn. And even I have been told by many of the students, when the practice section of the sentences is completed, almost everybody says to me that, sir, we have done all of the sentences okay correctly, and it's very good sign that you are moving ahead properly, moving ahead nicely and effectively, and you are almost removing or you are almost identifying, recognizing the errors and the proper use of all these sentences there. So right today we'd like to give you more sentences, because it is through sentences. तो आज भी हम जो वो sentences के थ्रू थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं आपको इनिशियली कुछ बातें बता दूं। तो देखो बेटा, प्रेजेंट टेंसेस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट टेंसेस के अंदर सिर्फ आपको टाइम को देखकर प्रेजेंट टेंस का वर्ब इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आज हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, हमारा क्योंकि कल तो टेस्ट है, तो अच्छा नहीं लगता कि आज कोई नया टॉपिक हम बीच में स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट टेंसेस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंसेस के अंदर आपको प्रेजेंट का वर्ब, मैंने कल भी जो है वो अपने रिव्यू लेक्चर के अंदर बताया, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर मिस करते हैं और फिर बोलते हैं सर हमारा मतलब रह गया, या हमने नहीं पढ़ा, या हमने नहीं फॉलो किया। तो बेटा आप करें, फॉलो करें, फायदा होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आपको इंग्लिश के लिए जरूर अलग पढ़ना ही नहीं है, आप सिर्फ मेरे लेक्चर अटेंड करो, मेरी प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो, आपको अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी इसी में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप खुद जो वो बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, मसला ही नहीं होगा, आपको अलग पढ़ने की या जरूरत ही नहीं होती। तो आप लोग बोलते हो मुझे कि सर हमें पढ़ना पड़ता है अलग, तो बेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ, खुद आपके साथ पढ़ता हूँ ये सारी है, और उसी में आपका तकरीबन आधे घंटे के अंदर काफी चीजें कवर हो जाती है। इससे ज्यादा और क्या फायदा होता है कि बजाय आप अलग बैठ के जो वो एक एक 2 घंटे इसके ऊपर दें या परेशान हो, भले ना भी दें, तो ये मतलब ये बात है, आप तो मर्जी वाले, आपकी मर्जी है। अच्छा, तो बहरहाल देखो प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा था। प्रेजेंट टेंस के अंदर बेटा हमें क्या करना होता है कि प्रेजेंट के वर्ब को देखना होता है, जो कल मैंने आपको शाम को भी ये बात बताई कि वर्ब जो है वो प्रेजेंट का। अब
जैसा नाम होता है वैसा वर्ब आपको प्रेजेंट के अंदर पुट करना होता है, क्योंकि टेंसेस का मतलब टाइम होता है, तो प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम के अंदर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहे हैं हम कि प्रेजेंट का ही वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन और बनावट जो होती है देखो सिंपल या इंडेफिनिट की तरह, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब इस टेंस को छोड़ के बाकी प्रेजेंट के जितने तीनों टेंसेस हैं, देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन तीनों टेंसेस को जब हम देखेंगे तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनेंगे बेटा। ये तीनों टेंसेस जो इस्तेमाल होते हैं तो हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, तब हमारी ये तीनों जो है वो टेंसेस करेक्ट होंगे, सिवाय इनडेफिनिट। सिवाय इनडेफिनिट या सिंपल जो टेंस होता है वहां देखो हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करते। अब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बी के वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, देखो हेल्पिंग वर्ब जिनको हम कहते हैं, वो जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई एक्शन कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू हो एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्शन हो, जैसा नाम वैसा हम इस्तेमाल करेंगे, तो तब हम देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो फिक्स्ड एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जो फिक्स्ड और रूटीन वाले एक्शन होते हैं, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। जो परमानेंट एक्शन होता है उनके लिए इस्तेमाल होता है। ये आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग, देखो तो आप देखें आई एम अ टीचर मतलब ये मेरा एक फिक्स एक्शन है, ये मेरा एक परमानेंट एक्शन है, ये मेरा एक जनरल एक्शन है, अकरेंस है। तो देखो उसमें मैंने आई एम अ टीचर यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। लेकिन उसके बाद देखो यानी करंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, तो करंट और प्रोग्रेसिव की जो बात हो रही है तो उसमें देखो मैंने जो सेंटेंस इस्तेमाल किया है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल किया है, जैसे आई एम टीचिंग। क्योंकि आप खुद देखें तो मतलब जो एक्टिविटी है मेरी अब प्रोग्रेसिव है, इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया आई एम टीचिंग। फिर देखो जब टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें कीवर्ड्स मतलब इस्तेमाल होते हैं, जैसे एट द मोमेंट इस्तेमाल होता है, नाउ डेज इस्तेमाल होता है, राइट नाउ इस्तेमाल होता है, इससे अल्फाज। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है बेटा, अब इसमें और पास्ट में देखें स्टूडेंट्स को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है या अनइजीनेस थोड़ी वो महसूस कर रहे हैं, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में एक फर्क होता है कि पास्ट में फिनिश्ड हो जाता है, ठीक है। पास्ट जो इस्तेमाल होता है, इसकी पास्ट सिंपल टेंस की दो चीजें आप जहन में रखें, एक तो उसका एक्शन जो होता है वो पास्ट में फिनिश्ड हो जाता है, वो आगे कंटिन्यू नहीं करता, एक नेचर ऑफ एक्शन देखो ऐसी होती है। नंबर टू, पास्ट के साथ जो हम टाइम इस्तेमाल करते हैं वो भी पास्ट का टाइम होता है, और पास्ट का टाइम भी देखो फिनिश्ड टाइम होता है। वो टाइम मिसाल 2000 कोई आज थोड़ी चल रहा है, येस्टरडे आज थोड़ी चल रहा है, या लास्ट नाइट अभी थोड़ी है, ठीक है, या जो वो लास्ट मॉर्निंग अभी थोड़ी चल रही है। तो आप देखें ये टाइम भी फिनिश्ड हो गया, तब देखो हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट के एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास्ट वाला जो टाइम होता है ना, जिसको हम फिनिश्ड टाइम कहते हैं, वो टाइम नहीं इंक्लूडेड होता, तब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो टाइम नहीं होता। सिवाय सिवाय देखो यानी जब आप सिंस और फोर इस्तेमाल करते हो, देखो बेटा सिंस और फोर का मैंने जो यूज बताया है, देखो तब यानी आप पास्ट के टाइम के साथ यानी वो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट का वो एक्शन जो आप पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक लेके आते हो ना, तो ऐसे एक्शन के लिए आप सिंस और फोर इस्तेमाल करते हो टाइम के साथ। ये एक इसका यूज होता है डिफरेंट, ठीक है, जिसमें मिसाल के तौर पर आप देखें, वी हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग ओके फॉर अबाउट 4 months, वी हैव बीन लर्निंग फॉर अबाउट 4 months, 4 महीनों से पढ़ रहे हैं हम। तो अब देखो फॉर अबाउट 4 months, 4 months मतलब months which started the time of okay started in the past, तो वो पास्ट वाला टाइम है। अब देखो अप टू द मोमेंट, अप टू या टिल द प्रेजेंट जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, इसीलिए देखो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अबाउट या सिंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी सिंस और फॉर लगाकर उस टाइम के बाद, क्योंकि उसमें हमें ये नजर आता है कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट तक भी है, तो सिर्फ एक यूज के अंदर। अदरवाइज आप देखो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इस्तेमाल करते हैं वो इनडेफिनेट टाइम होते हैं, डेफिनेट तो होते नहीं है, जैसे नेवर होता है, एवर होता है,
ठीक है, या ऑलवेज होता है, ऐसी टाइम एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो मतलब डेफिनेट टाइम नहीं होता, या ऑलरेडी होता है या येट होता है, तो इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे ऑलरेडी होता है जिससे फिनिश्ड हो जाता है, फिनिश्ड का सेंस होगा, ऑलरेडी मैंने पहले, येट मतलब फिनिश्ड नहीं होता कि अभी होने वाला होता है, लेकिन परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनेट टाइम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी ऐसे मतलब कंटिन्यूटी शो करता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या फर्क है? देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसमें फोर और सिंस लगाते हैं, वो थोड़ा लॉन्गर एक्शन को शो करता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो बिल्कुल आरजी होता है बेटा, क्या वो बिल्कुल टेम्पररी। तो ये हो गए चारों टेंस। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट का मैंने आपको थोड़ा अभी पहले ही बता दिया। देखो पास्ट टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो फिनिश्ड होता है, और दूसरा पास्ट में जो हैबिचुअल एक्शन रूटीन वाले थे ना, जो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन थे, उनके लिए भी आप पास्ट सिंपल, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके से पास्ट जो होता है सिंपल पास्ट, वो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए हम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू का भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट के साथ आप पास्ट के का फिनिश्ड टाइम जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी जो वो फिनिश टाइम जो गुजर चुका है टाइम, वो आप ऐड कर सकते हैं। 2010 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, ठीक है, 19 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, इस तरीके यस्टरडे कर सकते हैं, फ्यू मिनट्स अगो आप कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम कर सकते हैं। इस तरीके से ये फिनिश टाइम जो है वो आप पास्ट सिंपल टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा टाइम या एक्शन फिनिश्ड होता है, तब देखो हम ये इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है पास्ट प्रोग्रेसिव, जो कि पास्ट में कंटिन्यू, जो कि पास्ट की जो ड्यूरेशन जो थी, जिसमें मैंने टाइम लाइन जो वो जो भी टेंसेस पढ़ाए, देखो अब सिर्फ आपके दो शायद नोट्स रहते हैं, प्रेजेंट पर सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, वो भी मैं मोबाइल में लेके चल रहा हूँ, पता नहीं क्यों सेंड नहीं होते, वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, और कोई इश्यू नहीं है। तो आप देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, वो भी पास्ट के अंदर जो ड्यूरेशन थी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फोर और सिंस इस्तेमाल ना करें। प्रोग्रेसिव टेंसेस जो पास्ट के होते हैं उनके लिए, और वो टेम्पररी एक्शंस होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में भी आपको पता है इस्तेमाल होता है, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल ये दोनों कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस जो एक्शन पहले के लिए और पास्ट सिंपल जो होता है वो बाद वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आज भी क्विज रखा है आपके लिए, क्योंकि जितना क्विज ज्यादा होता है प्रैक्टिस होती है, और जितने भी ज्यादा एक्सपोजर होता है, हमें जो है वो पूरा के पूरा जो है वो हर चीज से मतलब फेमिलियर रहना है, इसीलिए। फिर पास्ट परफेक्ट जो होता है, देखो पास्ट परफेक्ट बेटा कब इस्तेमाल करते हैं, यानी अर्लियर, इसके यूजेस हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट यूजेस पढ़ रहे हैं, अगर एक दो और एडवांस यूजेस देते हैं तो आप बोलते हैं सर इतना ये वो, तो मतलब वो जो रिलेवेंट चीजें होती है, जो इंटरमीडिएट लेवल तक होती है, कोशिश करके कंटेन करते हैं अपने आप को। तो बेटा देखिए इसके अंदर ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों जब एक साथ इस्तेमाल होते हैं ना, तो इनमें कौन सा फर्क होता है? पास्ट परफेक्ट अर्लियर एक्शन के लिए, सिंपल पास्ट और लेटर एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा, यानी इसके अंदर भी हमने इस तरीके से इस्तेमाल। अब लास्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी ये कि वो एक्शन जो पास्ट में ही कंटिन्यू था, चल रहा था, ठीक है ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंट तक कोई ये नहीं जो वो नहीं होता इफेक्ट वगैरह। तो हम चलते हैं बेटा, आप देखो ये आपको सेंटेंसेस, अब मैंने आज जो सेंटेंसेस इधर रखे हैं देखो, उसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ा और आसान हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी टेस्ट जो मैंने रखी है ये मतलब थोड़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट इस हवाले से कि इसमें ऑप्शंस नहीं है, आप खुद जो वो करेक्शन या खुद जो वो करेक्ट करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आप खुद थोड़ा मतलब मैं आपको टाइम दे रहा हूं और वह भी कर ले, अगर पूरा सेंटेंस देखो देर हो जाएगी तो आप प्लीज ये इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है हरी अप वी ऑल वेट फॉर यू, ठीक है, हरी अप मतलब ये इनकरेक्ट है सेंटेंस। एक तो बात मैं आपको बता दूं कि ये करेक्ट नहीं है, आप इनको करेक्ट करें। तो लिखा हुआ है हरी अप वी ऑल वेट फॉर यू, अब बताएं जल्दी जल्दी बेटा, टाइम ही नहीं होता देखो, अब बाकी थोड़ा ही टाइम में जल्दी सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ये कौन सा टेंस हो सकता है, आपने कर लिया होगा हरी अप वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है बेटा, इसमें ये तो सेम आ जाएगा,
ठीक है, सेम आ जाएगा। और इधर जो होगा आप देखो ये कैपिटल होगा, क्योंकि इसके बाद यानी मैं पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा आपको, इस साइन के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा। वी ऑल, ठीक है, वी ऑल आर वेटिंग, क्या होगा बेटा, वेटिंग फॉर यू, फॉर यू, ये क्योंकि हरी अप ये कीवर्ड है। हरी अप मतलब देखो एक सिचुएशन बना रहा है प्रेजेंट की। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, व्हाई डू यू क्राई, इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई डू यू क्राई, इज समथिंग रॉन्ग। देखो प्रेजेंट की बात हो रही है बेटा, प्रेजेंट में जो है ये उससे बात कर रहा है। तो जब प्रेजेंट में एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बात कर रहा है, तो जाहिर है इधर भी जो टेंस इस्तेमाल होगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा। यानी इसका क्या होगा, सॉरी, इसका जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो व्हाई आर यू क्राइंग, बेटा इंट्रोगेटिव है ना, तो हम यानी व्हाई आर यू क्राइंग, तो ये आपका सेम हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। देखो व्हाई आर यू क्राइंग, इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग both of them are talking to each other, that's why here we have to put the verb of present progressive tense or continuous tense। फिर हम नंबर 3 पे आते हैं, ब्रिटेन्स रेलवे सिस्टम, शाबाश, ग्रेजुअली इंप्रूव, ग्रेजुअली इंप्रूव एक यूज पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। कौन सा यूज पढ़ाया था, जल्दी जल्दी कर ले, शाबाश, ठीक है, आप खुद भी करते जाए प्लीज, मुझसे पहले आप करेंगे तो मतलब ये फायदा होगा, क्योंकि आप खुद क्या कर रहे हैं। ब्रिटेन्स रेलवे सिस्टम इज ग्रेजुअली इंप्रूव्ड, बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो मैंने एक जो यूज पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है वो चेंजिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या जो डेवलपिंग एक्शंस होते हैं। तो देखो ग्रेजुअली इंप्रूव, ये चेंज शो हो रही है, चेंज शो हो रही है। तो ये सेंटेंस मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, ये चैलेंज नहीं हो रहा है, मुझे पता है नहीं हो रहा है। अगर आपने जो मैं लिखने जा रहा हूं उसका जवाब ऐसा अगर किया है तो बिल्कुल आप जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया है तो प्लीज आप और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखते हैं आपने ऐसा किया या नहीं, या अलग किया है, देखते हैं। ब्रिटेन्स ये तो सेम हो जाएगा, रेलवे सिस्टम इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इज सही है, ये भी आपका सही है। इज बीइंग ग्रेजुअली, बेटा देखो इज बीइंग ग्रेजुअली, ये वर्ड थोड़ा आगे आ गया तो इसीलिए मैं, इज बीइंग ग्रेजुअली इंप्रूव्ड। अब देखो सही है, देखो ब्रिटेन्स रेलवे सिस्टम इज बीइंग ग्रेजुअली इंप्रूव्ड, ठीक है ना, ये आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते, इज बीइंग इंप्रूव्ड ग्रेजुअली, यार इस तरीके से ले जाए। लेकिन ये बेटा मतलब हम इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे, इज इंप्रूविंग वगैरह ये नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर में बनेगा। तो हम ये पैसिव करेंगे, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसके साथ लगी है, तो ये पैसिव में सेंस देगा, एक्टिव में सेंस नहीं दे रहा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये देखो चैलेंज ये नहीं होगा, तो ये इज बीइंग यानी पैसिव में, तो हमें पैसिव सिलेबस में मिला नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव में रहेगा। अगर टाइम बचा तो हम देखेंगे आगे पैसिव को भी। 4 वी प्रोबेबली स्पेंड नेक्स्ट वीकेंड एट होम, नेक्स्ट वीकेंड पर्सनल एक्शन है। देखो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सुने, इधर कोई कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी फ्यूचर का जिक्र होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फ्यूचर का जिक्र होता है। बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो फ्यूचर का डिस्कस होता है या फ्यूचर टाइम के बारे में बताया जाता है, देखो वो एक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। उस एक्शन की जो नेचर ऑफ एक्शन जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ्यूचर के लिए होती है, वो नेचर ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि वो यानी कोई टाइम टेबल का एक्शन हो, वो किसी इदारे का एक्शन होता है, या वो जो कैलेंडर का एक टाइम टेबल जो डेट या डे फिक्स होती है उसका एक्शन हो, ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका एक्शन होता है। तो जो टाइम टेबल होता है ना वो फिक्स होता है। अगर फिक्स टाइम टेबल वाली बात हम फ्यूचर के लिए करेंगे ना तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पर्सनल कोई एक्शन अपना फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। देखो आई वी वगैरह ये पर्सनल हो जाता है। अच्छा ट्रांसपोर्ट देखो पर्सनल नहीं होती, वो मतलब एक जनरल होता है, एक पब्लिक सर्विस होती है। इंस्टीट्यूशन देखो एक पब्लिक सर्विस होती है। कैलेंडर देखो एक जनरल ओवरऑल देखो होता है। तो ऐसी जो सर्विसेज होती है वो जनरल होती है, और उनका जो टाइम टेबल होता है वो पहले से फिक्स होता है, सेट होता है। तो उनके एक्सप्रेशन जो फ्यूचर के लिए जब इस्तेमाल होगी तब हम देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई पर्सनल एक्शन, जैसे हमें कल जाना है, नेक्स्ट वीक जाना है, नेक्स्ट मंथ जाना है,
या आज शाम जाना है, ठीक है, मुझे आपको या किसी को कोई एक्शन पर्सनलाइज हो रहा है, तो उस एक्शन को हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों देखो टेंसेस के अंदर फ्यूचर का डिफरेंस है। यूज ऑफ फ्यूचर देखो दोनों टेंसेस में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अच्छा देखो, वी प्रोबेबली स्पेंड, देखो वी की बात है, हमारी बात है, इसमें कोई देखो टाइम टेबल या स्केड्यूल की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात नहीं है, पब्लिक की बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा देखो इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, यानी वी आर प्रोबेबली, क्या होगा बेटा, वी आर प्रोबेबली, और इधर देखो स्पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लिखा हुआ है, कीवर्ड नेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि फ्यूचर को शो कर रहा है। फिर नंबर 5 पे आते हैं, आई एम गोइंग टू द माउंटेन्स अबाउट ट्वाइस अ ईयर। बेटा अबाउट ट्वाइस अ ईयर देखो हैबिचुअल एक्शन हो गया है। अगर कोई हैबिचुअल एक्शन होगा तो आप हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो मैं इधर ही जो है वो इसको काट के, क्योंकि जगह नहीं है, तो इधर क्या लिखूं, आई गो टू द माउंटेन्स, ये जो राइट होगा बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। आई गो टू द माउंटेन्स अबाउट ट्वाइस अ ईयर, कीवर्ड दिया हुआ है हर जगह पर। आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्लीज इन 5-6 सेंटेंस को सिर्फ चेक करें, मुझे बताएं कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस के अंदर हमें कोई क्लू या हिंट या कीवर्ड नहीं मिला हो, या कोई सिचुएशन जाहिर नहीं हुई हो, या कोई कॉन्टेक्स्ट जाहिर नहीं हुआ हो सेंटेंस में। आप फ्रॉम 1 to यानी ऑल सेंटेंस चेक, तो हर जगह पर आपको यानी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन के तौर पर सामने आया होगा। अच्छा उसके बाद 6 में देखें, आर यू बिलीविंग व्हाट ही सेज। बेटा इसमें कौन सी गलती है, ये गलती है, ये ज़हन में रखो, ये चीज आप भूल जाते हो। मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के नोट्स में ये स्टेटिव वर्ब्स लिख के आपको दिए कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, ठीक है। अब इधर क्या इस्तेमाल होगा, इधर बेटा ये होगा आर यू बिलीविंग, तो आर यू नहीं होगा, ये होगा डू यू बिलीव, क्या होगा, डू यू बिलीव होगा बेटा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। उन वर्ब्स को हम प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटिव वर्ब है, इसीलिए बिलीव यानी इसमें इस्तेमाल होगा। ओके, उसके बाद देखिए 6 के बाद बेटा, 6 के बाद 7 देखें, हैव यू हैड गुड वेदर लास्ट वीकेंड, हैव यू हैड गुड वेदर लास्ट वीकेंड। बेटा अब देखो ये हैव यू हैड गुड वेदर लास्ट वीकेंड, देखो लास्ट वीकेंड है, अब लास्ट वीकेंड है यानी लास्ट वीकेंड किसको शो करता है, लास्ट वीकेंड किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है, फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। तो पास्ट के फिनिश्ड वाले टाइम के साथ हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, आप करेक्ट कर सकते डिड यू हैव, ठीक है बेटा, देखो डिड यू हैव गुड वेदर लास्ट वीकेंड, देखो ये हो जाएगा डिड यू हैव गुड वेदर लास्ट वीकेंड, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये लास्ट वीकेंड क्या है, ये पास्ट है, इसीलिए आप इस्तेमाल करेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव हैड यानी हैव हैज के साथ हैड एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये देखो आपका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने उधर कीवर्ड को देखकर देखो सेंटेंस को चेंज किया, मॉडिफाई किया है, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब अब इधर डिड इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इसको देखकर। अच्छा फिर 8 देखें, वी हैव डिस्प्लेड सिंस 2000। बेटा जब सिंस लगता है, कीवर्ड देखो हर जगह पर कितना सपोर्टिव मैटर या सपोर्टिव चीजें होती है। बेटा ये जब सिंस 2000 लिखा हुआ है यानी कोई एक्शन जो पास्ट से लेकर अप टू द प्रेजेंट कंटिन्यू रहता है, तो आप या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये तो खाली प्रेजेंट टेंस है बेटा, ये वी हैव डिस्प्लेड ये सिंपली प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होगा, मैंने बार बार आपको बताया बेटा, जब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ जब दूसरा कोई मेन वर्ब आएगा तब देखो वो यानी आपका मतलब टेंस होगा, तब वो यानी हेल्पिंग वर्ब वाला टेंस होगा, फिर प्रोग्रेसिव हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा टेंस होगा, ठीक है, अदरवाइज वो सिंपल टेंस हो जाएगा। तो इधर देखो कोई दूसरा वर्ब नहीं है, एक वर्ब है, और जब जुमले के अंदर एक वर्ब होता है समझ लो कि वो एक मेन वर्ब होता है और वो सिंपल टेंस होगा। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो सिंपल टेंस होता है, किसी भी सेंटेंस में यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो समझ ले
वो सिंपल टेंस होता है, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट और दो वर्ब्स हों, उस सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर उधर ही दो वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हो, तो एक हेल्पिंग वर्ब दूसरा मेन वर्ब, तो वो आपका या तो प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा या तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें वी हैव, बेटा इसमें जो हो रही, तो आप देखें इसमें हम करेक्ट करेंगे इस तरीके से, वी हैव हैड दिस प्लेट, क्या दिस प्लेट, बेटा देखो दिस प्लेट सिंस 2000, अब ये सही है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ऊपर वाला नहीं है क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिंस वाला, इसीलिए हम परफेक्ट टेंस में इसको लिखेंगे। उसके बाद नंबर 9 देखें, आई एम वेटिंग फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर, फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर, देखो बेटा ये भी टाइम एक्सप्रेशन, जब टाइम एक्सप्रेशन प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर दी हुई होती है तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें, ना कि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे ना तो देखो गलत हो जाएगा। जब टाइम एक्सप्रेशन आपको मिला हुआ होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें। टाइम वाला वर्ड जब भी होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, सिंपल कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इधर भी बेटा देखो जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो कौन सा होगा, देखो आई हैव बीन वेटिंग होगा, क्या आई हैव बीन वेटिंग होगा। अब ये आपका देखो पूरा बाकी जो सेंटेंस है वो इस तरीके से होगा, आई हैव बीन वेटिंग होगा, किसकी वजह से, 4-3। देखो ये जो कीवर्ड्स हैं वो भी मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूँ। फिर नंबर 10 पे आप आए बेटा, आई कांट गो ऑन हॉलीडे बिकॉज आई ब्रोक माई लेग, आई कांट, एक देखो इधर प्रेजेंट का दिया हुआ है, कांट देखो प्रेजेंट का दिया हुआ है, और फिर हमने देखो इसके साथ पास्ट इस्तेमाल किया है, गलत हो जाएगा। अगर कुडंट होता तो भी ठीक है, कुडंट नहीं है। देखो ये कुछ इतने कॉन्क्रीट वर्ड्स हैं, इतने कॉन्क्रीट वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। आई कांट गो ऑन हॉलीडे बिकॉज आई हैव ब्रोकन माई, देखो ये तो पूरा जो टेक्स्ट होगा सेंटेंस का विल बी सेम, नो चेंज एट ऑल, और इधर जो आपका सिर्फ एक वर्ब चेंज होगा। इस वर्ब को देखकर मैं जो कहता हूँ मैचिंग और रिजेम्बलेंस वाली बात, तो इधर जो आपको करना पड़ेगा वो क्या, आई हैव ब्रोकन, बेटा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑल टेंसेस की हमारी जो प्रैक्टिस या टीचिंग हो रही है। अच्छा उसके बाद 11 को देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हियर हर सिंग, आई हियर हर सिंग, हियर बेयर इन्फिनिटिव है, इसके साथ टू वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सिलेबस में भी नहीं है, सिलेबस में सिर्फ टेंस की बात हो रही है, आप परेशान ना हो कि सिंगिंग सॉन्ग वगैरह आपका इसका मसला नहीं है, लेकिन ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। इधर देखो मैंने ब्रैकेट में बेटा लिखा है कि दिस इस्तेमाल हो दैट या इट इज, देखो दिस दैट इट इज, अगर ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो और इनके साथ द फर्स्ट द सेकंड या थर्ड टाइम वगैरह ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल होंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। सुने, आप पूछेंगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, देखो जब भी जुमले के अंदर दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, या इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, जब ऐसी एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो तो हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा टेंस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इधर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है जो कि गलत है, और इधर जो हमारा दुरुस्त होगा ना वो होगा आई हैव हर्ड हर सिंग, ये सही है, इसको चेंज ना करें, ना ही आपके सिलेबस में, इसके लिए आप परेशान ना हो। तो ये देखो ब्रैकेट में मैंने दे दिया है। अच्छा उसके बाद नंबर 12 पे आते हैं। अच्छा, when I was a child we always had been to the seaside in August, बेटा देखो ये हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, पूरा हैबिचुअल एक्शन है, एक एज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो मैंने हैबिचुअल एक्शन को देखो पास्ट परफेक्ट में लिख लिया है, तो ये मैंने गलती की है, मिस्टेक की है। तो इधर कौन सा मतलब आप बताएं, when I was a child okay we always यानी had been to the seaside in August, तो आप मुझे बताएं बेटा इधर कौन सा राइट ऑप्शन होगा, we always went to the seaside in August, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, went हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इधर आप बोले सर गो इस्तेमाल करें, बेटा गो कैसे होगा, आप देखें इधर पास्ट का वर्ब दिया हुआ है तो इधर भी हम पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट का सेकंड फॉर्म है वो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। अच्छा तो आप इसको इस तरीके से भी ऑलवेज वेंट टू द सी साइड लिखें, वी ऑलवेज या वी यूज्ड टू गो टू द सी साइड लिखे, या वी वुड गो टू द सी साइड, क्योंकि यूज टू और गो टू ये भी हम सॉरी वुड भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसके बाद देखें लास्ट सेंटेंस हमारे बेटा देखें। अच्छा 13 देखें, व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग द सन शोन द बर्ड्स सिंग, बेटा
देखो ये लेटर एक्शन है, हमने आपको कॉम्बिनेशन बताई है, एक पास्ट सिंपल की और पास्ट कंटिन्यूस की कॉम्बिनेशन है कि जब दो टेंसेस इस्तेमाल होंगे तो पास्ट सिंपल टेंस जो होता है वो अर्लियर एक्शन जो पहले से कंटिन्यूस होता है उसको आकर इंटरप्ट करता है, और वो जो जिस एक्शन को इंटरप्ट करता है, जिस टेंस को इंटरप्ट करता है, देखो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसको आकर इंटरप्ट करता है। ठीक है, तो देखो जब ये तो बाद में उठे, चलो ठीक है, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देखो पहले से मतलब कंटिन्यू था। तो जैसे ही उठे इन्होंने देखा द सन वॉज शाइनिंग, इधर बेटा जो होगा यानी चेंजिंग सिर्फ इधर होगी, द सन वॉज शाइनिंग, क्या होगा, वॉज शाइनिंग, देखो एक ये हो जाएगा। ठीक है, और द बर्ड्स वर सिंगिंग, ठीक है, इधर क्या होगा, द बर्ड्स वर सिंगिंग, बेटा ये भी इस तरीके से हो जाएगा, द बर्ड्स वर सिंगिंग, व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग द सन वॉज शाइनिंग द बर्ड्स वर सिंगिंग, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। यानी आप मतलब कोई चेंज यानी सॉरी प्रोग्रेसिव एक्शन शो करेंगे। उसके बाद आई एक्सप्लेन दैट आई हैव फॉरगॉटन माय कीज, बेटा देखो ये गलत है क्योंकि पास्ट का वर्ब लिखा हुआ है, जैसा वर्ब होगा वैसा वर्ब इसके ऊपर इफेक्ट या असर करेगा, तो इधर आप हेड फॉरगॉटन, इसमें कोई इतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद 15 पे हम आते हैं, आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट, आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट, बेटा देखो पास्ट लिखा हुआ है ये गलत है, क्या होगा, आई पास्ट होगा वर्ब की, देखो इस तरीके से। तो जो देखो वेरिएशन आती है, मतलब जो भी है मैंने कोशिश करके वो रखी है, आई पास्ट हो जाएगा। अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम डायनोसर्स वर रोम्ड, बेटा वंस अपॉन एक मतलब यानी एक बात हो रही है, रूटीन की बात हो रही है, तो इधर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे खाली जो पास्ट का फॉर्म होगा ये राइट होगा, वंस अपॉन अ टाइम डायनोसर्स रोम्ड द अर्थ, ये आपकी राइट चॉइस होगी। ओके, इतना काफी, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।